مسلم بردرہڈ کی بات ہم سنتے ہیں، لیکن کیا کہیں قرآن یا حدیث میں ایسا لکھا ہے کہ بطور مسلمان، بطور اسلام دھرم سے جڑے ہونے کے ناطے آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ غیر اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑائی لڑیں؟ دیکھیے میڈم، اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ساری مخلوق میری عیال ہے، میرا پروار ہے، میرا کنبہ ہے یہ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کا قتل کر دے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اور کوئی انسان کسی انسان کی جان بچا دے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی. رہی ملکوں کی جو لڑائی ہوتی ہے، حکومتوں کی جو لڑائی ہوتی ہے اور ملکوں کو جو فتح کرنا ہوتا ہے، یہ ہزاروں سال سے ملکوں پر حکمرانی کرنے کی خواہش ہر بادشاہ کے پاس رہی. دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو جن میں پوری دنیا میں حکومت کی ہے. ایک 2 ایمان والے ہیں، 2 غیر ایمان والے. ایمان والوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور غیر مسلموں میں نحست بخر مظہر اور نمرود، 2 وہ ہیں غیر ایمان والے. بات رہی کہ اسلام نے جو جنگیں کی ہیں اس میں سب سے پہلے اسلام نے کلمے کو پیش کیا. اسلام نے ڈائریکٹ لڑائی نہیں دی. اسلام نے سب سے پہلے جا کر کسی بھی ملک میں کہ حکمرانی تم کرو اور کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، ہمارے جیسے ہو جاؤ. نہیں پڑھتے تو ہمیں جزیہ دو، ٹیکس دو، ہم تم ہی حکمرانی کرو، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، تم حکمرانی کرو، ہمیں ٹیکس دو، ہم جزیہ دو، ہم تمہاری دیکھ ریکھ کریں گے. نمبر 3 پر اسلام نے کہا کہ جب نہ کلمہ پڑھتا، نہ ایمان میں داخل آتا، نہ ہمارا جیسا ہوتا، نہ جزیہ دیتا، تو پھر تلوار ہے جنگ کے لیے، فتح کے لیے. اور ایسا کہیں نہیں ہے کہ جس ملک میں جب کہتا ہوں انڈونیشیا، ملیشیا میں کوئی تلوار نہیں چلی میڈم، اور 80-90% لوگ مسلمان ہیں. چائنا میں کوئی تلوار نہیں چلی، لوگ مسلمان ہیں. بات یہ ہے کہ اسلام، مطلب ان کا دھرم پریورتن کروا دو تو ان کے خلاف تلوار نہیں چلائیں گے، اگر وہ اسلام نہیں مانیں گے تو تلوار چلائیں گے. میڈم 1 لاکھ، اگر رام چند جی اور کرشن جی اگر میسنجر ہیں تو 1,24,000 انبیاء نے ایک ہی بات کہی ہے، اور اس میں میں آپ سے گزارش کروں آپ دوسرے دھرم کو بیچ میں نہ لائیں، اسلام تک سیمت رکھیں، کیونکہ دوسرے دھرم کا کوئی بھی دھرم گرو یا نمائندہ یہاں اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہے. میں نے کسی دھرم پر ایسا، یا اگر وہ بھی مطلب کوئی موجود نہیں ہے تو اس دھرم کو چھوڑ کر اپنے میڈم مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک پاکستان کے رائٹر تھے، وہ بھی اس کرشن کو اور رام کو یہ کہتے ہیں کہ وہ میسنجر، خدا کے میسنجر ہو سکتے ہیں. تو میں نے اس لیے آپ پہ نام لیا، کسی کا اعتراض نہیں. تو انہوں نے ساروں نے ایک آواز میں، ایک ساؤنڈ میں آواز دی ہے، اور لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل جبیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ پیغام اللہ کا ہے انسانیت کے لیے، اور ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ سارے انسان جنت میں جائیں، جہنم میں نہ جائیں. اس لیے 1,24,000. اگر مجھے جنت میں جانا ہے تو میرے کو اپنا ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام قبولنا ہوگا، ہے نا، نہیں تو میں جہنم میں جا کے مروں گی. دیکھیے ٹھیک ہے. سمیر، بات ہو رہی ہے کہ کیا لڑائی کرنے کا، جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام نان مسلم کنٹریز اور نان اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ؟ جیسے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مطلب تلواریں ہوں، اور انڈونیشیا، چائنا، انہوں نے ایک بڑی اچھی آیت مطلب اگر جو مسلمان نہیں ہے تلوار کے دم پہ مسلمان بنا دو کیا؟ جی ایسا ہی ہے بالکل. اگر دعوت دی جائے گی، دعوت قبول نہیں کی جائے گی تو ان کے ساتھ جو ہے وہ حرب کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی. اس کا جو ہے بڑی ساری آیتوں کے اندر حکم ہے. 9:29 میں آتا ہے کہ جنگ کرو ان سب لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان نہیں رکھتے، جب تک کہ وہ جو ہے دین حق کو قبول نہ کریں اور جزیہ نہ دیں اور چھوٹے بن کر نہ رہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ایک آیت کوٹ کی ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن جو ہے یہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان کا قتل کیا کسی نے تو وہ پوری انسانیت کا قتل کیا. اصل میں یہ آیت کہتی کیا ہے، آپ اس کو ذرا غور فرمائے. یہ جو بات یہ کرتے ہیں یہ اس سے بالکل الگ بات کرتی ہے. یہ کہتی ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض، یعنی کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا سوائے اس کے کہ قتل کا بدلہ لے رہا ہو یا فساد فی الارض کر رہا ہو تو اس نے ایسا ہے جیسا کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اب یہاں پہ فساد فی الارض کے بارے میں اللہ خود قرآن کے اندر بتاتا ہے کہ فساد فی الارض یہ ہے کہ کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے. اب یہاں پر اگر اس انسان کو قتل کر دیا گیا جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہا تھا تو اس نے فساد فی الارض کیا، اور جب اس نے فساد فی الارض کیا تو اس کے لیے آیت نہیں ہے، یہ آیت اس کے لیے ہے جو صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے. تو انڈائریکٹلی یہ آیت سورہ المائدہ کی 5 کی 32
صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر کسی نے مسلمان کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ بات یہ آپ کو نہیں بتائیں گے, یہ صرف انسانیت کی بات کریں گے. اس کے علاوہ اب یہ 5 کی 33 نہیں پڑھتے, 32 پڑھ کے ختم ہو جاتی ہے کہانی. 5 کی 33 کیا کہتی ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسألون فی الارض فسادا ان یقتلوا ان یصلبوا ان تقطع ایدیہم. جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یا حرب کرتے ہیں, یہاں پہ یحاربون کا لفظ آیا ہے. یحاربون کے اندر ہر ایک وہ حرب آتا ہے, چاہے آپ رسول اللہ کو برا سمجھیں, اس کی بلاسفیمی کریں, اسلام کو چھوڑ دیں, ان کے خلاف جنگ کریں, جنگ کی سازش کریں, یا ان کے ہونے والے حملے کے خلاف آپ تیاری کریں, یہ سب حرب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جو یہ سب کام کرتا ہے یحاربون کرتا ہے, ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو, ان کو سولی چڑھا دو, ان کے ہاتھ اور پاؤں الگ الگ سمتوں میں کاٹ دو, اور یہ سزا ہے ان کی دنیا میں, آخرت میں ان کے لیے بڑا عظیم عذاب ہے. اور اسی لیے اسلامک اسٹیٹ جیسے سنگٹھن جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ وہ اسلام کے پرچار پرسار کے نام پر ہی لوگوں کو برگلاتے ہیں اور پھر دنیا بھر میں آتنک پھیلاتے ہیں کہ بھئی آپ کا فرض ہے, جو غیر اسلامک اسٹیٹ ہیں, اسلام کو نہیں مانتے ہیں, ان کے خلاف اب جنگ کا اعلان کر دو. نہیں, ایسا نہیں ہے میڈم, اسلام نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی کہ کسی کی زبردستی کسی کا قتل کر دو. یہ غلط. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ 5 کی 32, 5 کی 33, 9 کی 29, 9 کی 23, 9 کی 17, 9 کی 5, کیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, ایک منٹ سمیر. دیکھیے, بادشاہت جب سے آئی, خلافت کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا. بادشاہت جب سے آئی تو لوگوں میں ملکوں کی ہوڑ ہو گئی. خلافت کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا. خلافت کے زمانے میں خود خلیفاؤں کو آپ کے مسلمانوں نے قتل کیا. عمر کو کس نے قتل کیا؟ علی کو کس نے قتل کیا؟ حضرت عثمان کو کس نے قتل کیا؟ عمر کو یہودی نے عمر کو. حضرت عثمان کو کس نے قتل کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے خلیفہ, کس نے قتل کیا؟ دیکھیے, نہیں, دیکھے نہیں, بتائیے کس نے قتل کیا؟ قتل کوئی بھی کرے کسی کا, کوئی بھی کیوں کرے؟ آپ کہہ رہے کہ خلافت کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا؟ دیکھیے, قتل ہوا. محمد بن ابو بکر, آپ کے سب سے پہلے خلیفہ کا بیٹا اور آپ کے حضرت علی کا بیٹا, کیونکہ جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو علی نے محمد بن ابو بکر کی ماں سے نکاح کر لیا تھا, ابو بکر کی بیوی سے. تو علی کا بھی بیٹا ہے اور ابو بکر کا بھی بیٹا ہے. اس نے قتل کیا حضرت عثمان کو. مسلمان تھا, کافر نہیں تھا. آپ کے اپنے خلیفہ کا بیٹا, آپ بات کرتے خلافت میں ایسا نہیں ہوا. حضرت ابو بکر نے جنگ یمامہ لڑی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے محمد صاحب کے بعد اسلام چھوڑ دیا. بھائی, قتل چاہے وہ علی کا لڑکا کرے یا عمر کا کرے, غلط ہے. وہ خلاف غلط ہے, اس کو صحیح کیسے کر دے گا؟ کسی کا کوئی قتل کر دے تو اس کو صحیح کیسے بنا دیا جائے؟ بات یہ ہے کہ قتل کرنا جرم ہے, چاہے کوئی علی کا بیٹا کرے, میں کروں, کوئی اور کرے, کسی کوئی کرے. قتل ہے, اس میں آپ کہیں گے کہ وہ جہنمی ہے. چلیں, محمد بن ابو بکر کو جہنمی کہہ دیں. دیکھیے, جہنم میں اللہ کا فیصلہ. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن سے اللہ نے راضی ہونے کو لیے کہہ دیا, وہ قتل کیا ہے, انہوں نے ان کی بھگتان رکھی ہے. اس میں سمیر کو, حاذق کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آسمان کے تاروں پر انگلی اٹھانے کی انہیں کسی کو ضرورت نہیں. 5 کی 32 کو اگر میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قتل کوئی بھی کرے, چاہے وہ کسی صحابی کا بیٹا ہو یا میں ہوں, قتل ہے, اس کا سزا اسے ملے گی, اس کی ذمہ داری ہوگی, اس کا جواب دہی بنے گی. سمیر کی نہیں بنے گی, میری نہیں بنے گی. نہیں بولیں گے کیونکہ یہ صرف جھوٹ بولنا جانتے ہیں. سمیر صاحب, نہ تو تمہاری ذمہ داری بنے گی نہ میری ذمہ داری. وہ جو قتل کر رہا ہے اس کی سزا ملے گی اسے, چاہے وہ علی کا بیٹا ہو یا ابو بکر کا ہو. تو کہنا کہ وہ جہنمی ہے, اس نے غلط کیا. جہنم کا فیصلہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, نہ میں دوں گا نہ تم دے گا. سمیر اور حاذق خان, آپ کے رائے الگ الگ ہو سکتی ہیں, اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ ریفرنسز, سالڈ ریفرنسز کی بات کریں, کیونکہ آپ کو یہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. حاذق خان صاحب, مجھے ایک چیز اور بتائیے, درست کیجئے گا اگر میں غلط ہوں, میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں, ایسا ہے یا نہیں ہے آپ بتائیں گے مجھے, کیونکہ آپ اسلام کے جانکار ہیں. کیا اسلام میں کہیں ایسا لکھا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں جو اسلامک ملک ہے, یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ ہے, یا پھر کسی ایسے سنگٹھن کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں جو اسلام میں بھروسہ رکھتا ہے, خود کو اسلام کا پرچار پرسارک کرنے والا سنگٹھن بتاتا ہے, جیسے کہ اسلامک اسٹیٹ کی بات لے لیجئے, اور آپ اگر اس لڑائی میں آپ کی جان چلی جاتی ہے تو آپ شہید نہیں کہلائیں گے. اسلامک اسٹیٹ کو کس نے اجازت دے دی ہے میڈم؟ سن لیجئے, ایک منٹ میری بات سن لیجئے. تو آپ شہید نہیں کہلائیں گے, آپ جہنم میں جائیں گے. ایسا ہے کیا اسلام کے مطابق؟ دیکھیے, اسلام میں کسی بھی کا قتل, حکومتوں کے اعتبار سے جو لڑ رہی ہیں ان کو اپنی سرحدیں بڑھانی ہوتی ہیں, وہ ملک بڑھانا چاہتے ہیں, یعنی کہ بھارت کے جو تمام سپاہی, جو تمام مسلم ہمارے جانباز سپاہی دیش کے ترنگے کی آن بان شان کے لیے شہید ہو گئے, وہ شہید ہیں سارے.
वो शहीद है शहीद है। इस्लाम ये कह रहा है जिस मुल्क में रहो उसके साथ वफादारी करो। अगर पाकिस्तान हमारी तरफ देखेगा तो हम पाकिस्तान की आंख में आंख डाल के फोड़ देंगे उसका। ये इस्लाम कह रहा है कि उस मुल्क में रहो, जिस मुल्क के साथ रहो उसके साथ वफादार हो। अब ये मैं बता रहा हूँ, शक शुबा ही नहीं है, उस पर कोई शक शुबा नहीं है, नहीं तो इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं होती मुस्लिम भाइयों की जिन्होंने तिरंगे की शान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसका हम तमाम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन बात यहाँ हिंदुस्तान की नहीं हो रही है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं हो रही है, इस्लाम की हो रही है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मुझे एक जानकारी मिली, आप उससे खारिज कीजिए अगर गलत है तो, और बताइए ताकि तमाम लोग जिनको ये गलत जानकारियाँ मिलती हैं उनका दिमाग जो है उसमें दुरुस्त हो, कि भाई अगर आप किसी इस्लामिक स्टेट यानी कि जिस मुल्क में शरिया कानून लागू है, जो इस्लामिक स्टेट खुद को कहता है, अगर आप उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और आपकी जान जाती है तो शहीद तो छोड़िए, आप जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि आप अपने इस्लाम भाई के खिलाफ, इस्लामिक स्टेट मैडम के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। गलत राय है लोगों ये की। गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम भारत के रहने वाले हैं। भारत नहीं सर, मैं कह रही हूँ इस्लाम की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं मेरा शौक क्या इस्लामिक कहता है, स्टेट इस्लाम है, क्या कहता है सऊदी अरब इस्लाम है, के मुसलमान सऊदी अरब जैसा मुल्क हमारे ऊपर अगर करेगा हुक्मरानी, हमारे ऊपर आएगा तो हमारे मुल्क के रहने वाले मुसलमानों को उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। क्यों कि इस्लाम कह रहा है कि जिस मुल्क में रहो उसके कानून, उसकी वफादारी करो, उस मुल्क से वफादारी करो। इसलिए हमारे मुल्क के ऊपर कोई भी आंच आएगी तो इस मुल्क में खाके वतन तुझ पे जब आंच भी आएगी आवाज हमें देना, हर गांव पर हम होंगे। इस मुल्क की हम रक्षा के लिए अपनी जान देते रहे और देंगे। ठीक है, इन्होंने तो एग्जाम्पल के साथ समीर बता दिया कि अगर कोई इस्लामिक मुल्क, जैसे कि अगर आप सऊदी अरब का हवाला ले लें, अगर आपके मुल्क पर, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, उस पर किस तरह का हमला करता है या कोई खतरा होता है, कोई भी मुल्क हो वो, तो अगर आप उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं तो आप शहीद कहलाएंगे, एक सोल्जर कहलाएंगे। इस्लाम बिल्कुल कहता है कि आप करें ऐसा। इससे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला दुश्मन जो है वो इस्लामिक स्टेट है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपका दुश्मन है। आप गलत कह रहे थे हमें, आप इस्लाम को बदनाम कर रहे थे समीर। नहीं, मैंने जो है पाकिस्तान या किसी और ममालिक का जिक्र नहीं किया है, मैंने नहीं कहा है। अगर हमारे हिंदुस्तान की आर्मी में कोई हमारा मुस्लिम भाई है और वो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या किसी भी एक कंट्री से लड़ते हुए शहीद हो गया तो वो बिल्कुल शहीद है, और अगर वो मुसलमान था तो वो बिल्कुल जन्नत में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक नरेशन। लेकिन हमारे जो हाजी खान साहब है और हमारे जो ऐसे और भाई मोमिन भाई हैं, वो असल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को इस्लामिक शरिया या इस्लामिक स्टेट समझते हैं। तो मैं बता दूँ, मेरा मुराद उनसे नहीं है। कुरान के अंदर ये जो आयत है सूरह अत-तौबा की आया नंबर 29 कि जंग करो उन तमाम लोगों से जो अल्लाह और आखिरी दिन के ऊपर ईमान नहीं रखते जब तक कि वो जिज़्या ना दें या फिर इस्लाम कबूल ना कर लें। तो ये जो हुक्म दिया जा रहा है 29 के अंदर, इसके अलावा 25 की 52 के अंदर जो हुक्म दिया जा रहा है फला तुतिउल काफिरूना हादिदहुम बिही हादिदन कबीरा, फिर जाहिदुन कबीरा, यानी कि आप जिहाद करें काफिरों के साथ इस कुरान के ज़रिए। ये कुरान के अंदर हम जैसे बता रहे हैं आप काफिरों के साथ वैसे जिहाद करें, तो कुरान जैसे जिहाद बता रहा है करने के लिए काफिरों के साथ, अगर इस कुरान को फॉलो करते हुए एक ग्रुप, एक गिरोह, एक इस्लामिक स्टेट अगर हमारे देश के ऊपर या किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करती है और मुसलमान वहां का, समीर साहब ये आयत नाजिल हुई है, ये कब हुई है? ये कब हुई है? मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे मेरी बात कंप्लीट सुन लीजिए खान साहब, उसके बाद तो अगर इन आयतों को फॉलो करते हुए, जिनको आयतों को फॉलो करते हुए जिहाद करने का हुक्म कुरान दे रहा है कि आप जिहाद करें काफिरों से, इन आयतों को फॉलो करते हुए 25 की 52 में लिखा है, तो इनको फॉलो करते हुए अगर एक ग्रुप, एक इस्लामिक स्टेट और कुछ लोग आकर के हमारे मुल्क के ऊपर हमला करते हैं इस्लाम को पैवस करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए या उसको जो है कायम रखने के लिए, तो अगर मुसलमान उन लोगों के खिलाफ जंग करेगा तो वो कुफ्र करेगा, वो काफिर होगा, वो जहन्नम में जाएगा, वो देशभक्त हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। मेरी बात को गलत साबित कर देखिए समीर साहब जो आयत बयान कर रहे हैं, जब मक्का से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल मुसलसल पिटाई करते रहे मक्का वाले सहाबा की, और मक्का से जब मदीना चले गए 2.5 साल तब भी परेशान करते रहे, ये आयतें उनके लिए नाजिल हुई थी। और उस जमाने के इन आयतों में दिखा दे कि ये उनके लिए है, हालात के एतबार, इन आयतों में दिखाएं कहां लिखा है कि उनके लिए है। ये आप दावा कर रहे हैं, क्या ये आयतें आज मानेंगे? ये जो लोग
कुफ्र कर रहे आज थे, भी जो मानेंगे, प्रॉफिट आपके मोहम्मद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे। परेशान कर रहे थे, जो इन प्रॉफिट मोहम्मद आयतों सल्लल्लाहु अलैहि पे वसल्लम आप के अमल साथ करते हैं कि नहीं करते? ये मखसूस उनके लिए है, उन काफिरों के लिए ऐसा कहाँ लिखा है इन आयतों में? अबे उसकी तफसीर देखिए, उसे तफसीर कुरान की आयतों में कहाँ लिखा है? तफसीर में दिखा दीजिए कि एक खास उनके लिए है। चलिए तफसीर, कौन सी तफसीर खोल बताइए, बताइए मैं कौन सी तफसीर खोलूं जिसमें लिखा है कि खास उन काफिरों के लिए है। बात यह है कि इसलिए कुरान जो आया 23 साल की जिंदगी में आया, और 43 साल में जो हादसात हुए उस जमाने के एतबार से कुरान की ये आप कोट कर रहे हैं आयत, और सहाबा को परेशान किया गया। मक्का फके मक्का इस आयत के अंदर ऐसा कहा लिखा, समीर साहब सुनिए, फतेह मक्का पर आम ऐलान माफी का किया गया। युहर्रिमूना मा हरमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीदूना दिनल हक्की व मिनल लज़ीना उतुल किताब हत्ता युतियुल बिल जिज़यति अन यदीउल हुम सागिरून। इस आयत के अंदर ऐसा कहाँ लिखा है कि ये सिर्फ उन काफिरों के लिए है, बाद के लिए नहीं है? देखिए अब सुनिए, 23 साल जब आप 13 साल आपको जब पिटाई की और मक्का फतेह हुआ तो आम माफी का ऐलान कर दिया गया। अरे सुनो, आप 13 साल के बाद तो मक्का फतेह हुआ ना, तो आम माफी का ऐलान मक्का में जिन्होंने घर से निकाला उन्हें माफ कर दिया गया। और जो कहा कि बैतुल्लाह में जो छुप जाए, 4 लोगों के लिए कहा था और दो वुमन के लिए कहा था कि अगर ये काबे का गिलाफ पकड़े हुए भी नजर आए तो इनको कत्ल कर दो। उसमें एक अब्दुल्ला बिन असद भी था जो कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चचेरा भाई था, और आपके लिए वो आयतें लिखता था जो नाजिल होती थी। लेकिन एक आयत नाजिल हुई, उसने ये कहा कि अल्लाह के रसूल इस आयत को ऐसे नहीं ऐसे करके लिखूं, अच्छा लगे, उसने कहा ऐसे लिख दो। उसका दिमाग में डाउट पैदा हो गया कि ये तो अल्लाह का कलाम है, मेरी बात कैसे मान ली, कैसे लिख दो। उसने इस्लाम को छोड़ दिया। उसको आपके रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया कि काबे का गिलाफ पकड़े हुए मिल्लत को कत्ल कर दो। कहाँ माफी, कहाँ अमन? जो लोग जो हमारे मुल्क में कोई घुसी आएगा, हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी करेगा, हमारे संविधान में अफ्तादरी करेगा, उसे हम बख्श देंगे? हम कश्मीर में घुसने वालों को रोक लेंगे? अपनी रक्षा के लिए अगर आपने करा तो क्या गलत किया, ये कह रहे हैं? उन्होंने यानी आम लोगों को नुकसान नहीं हुआ। इनके जो 4 लोग थे वो कुफ्र कर रहे थे, वो मुसलमानों को परेशान कर रहे थे। जालिमीन के खिलाफ होगी बात, जालिम के खिलाफ करी जाएगी कार्रवाई। ऐसा नहीं फिर से टॉपिक पर आते हैं, हाजिर खान साहब बात करेगा, जो प्रॉफिट के बाद खिलाफ बात करेगा, जो जुल्म करेगा मुसलमानों पर उसके खिलाफ कार्रवाई कुछ के हिसाब से होगी। आम माफी का तो ऐलान कर दिया गया। वो टॉपिक पर आते हैं। मैं टॉपिक ये नहीं कर रही थी कि क्या करेंगे, मेरा टॉपिक यही था कि अगर कोई इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई संगठन हो सकता है, मुल्क हो सकता है, इस्लामिक स्टेट हो सकती है। इस्लामिक स्टेट मतलब जहां पर शरिया कानून है, जो पूरी तरह से अपने आप को इस्लामिक मुल्क मुस्लिम मुल्क घोषित कर चुके हैं, वहां पर अगर कोई लड़ाई होती है तो हाजिर खान साहब कह रहे हैं समीर कि बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर कोई इस्लामिक मुल्क जो है वो हिंदुस्तान पर, एग्जाम्पल दे रही हूँ, या किसी भी मुल्क पर हमला करता है और उस मुल्क के मुसलमान अगर उस इस्लामिक मुल्क के खिलाफ लड़ते हैं तो वो जन्नत में ही जाएंगे, वो अच्छे कहलाएंगे, वो सुन्नत का काम कर रहे हैं, देश के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह तो का आप हुक्म गलत फॉलो बात कर रहे कह हैं, क्यों नहीं रहे जाएंगे हैं जन्नत? कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान मुल्क के खिलाफ लड़ेगा और जन्नत में जाएगा अगर वो रक्षा के लिए लड़ रहा है, अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहा है, अपने वतन के लिए लड़ रहा है, ना कि अपनी हवस के लिए कि मैं अपना जमीन बढ़ा दूं आगे। और आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी समीर, ऐसा हाजिर खान साहब मैंने इनसे अभी इनके सामने बात करते हुए अभी बताया है कि मुसलमान के खिलाफ लड़ना इस्लाम के खिलाफ लड़ना नहीं है। मुसलमान से लड़ाई करना इस्लाम से लड़ाई करना नहीं है, पाकिस्तान से लड़ाई करना इस्लाम से लड़ाई करना नहीं है, अफगानिस्तान से लड़ाई करना इस्लाम से लड़ाई करना नहीं है। पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री आजाद हुआ, इस्लामिक शरिया के साथ लड़ना, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। 5 की 33 जो यही बात करती है कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ काम करोगे तो मुजरिम हो गए। अच्छा मुझे बताइए, मुसलमान नहीं लोगे कैसे? अगर मैं शरीयत को नहीं मान लिया, मैं कुरान को नहीं मान लिया तो मैं मुसलमान कैसे हो जाऊंगा? मैं नहीं मान लिया, मैं अल्लाह की बात को नहीं मान लिया, नबी की बात को नहीं मान लिया तो मैं मुसलमान कैसे हो जाऊंगा? मैं कैसे इस्लाम का फॉलोवर हो जाऊंगा? मैं तो बागी हो जाऊंगा। बागी की बात कैसे मान ली जाएगी? आयत जो आप हवाला दे रहे हैं, हमारे मुस्लिम पैनलिस्ट जो हमारे दोस्त भी हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने भी एक इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की है पीसीआर से कि ये जो आयत का आप हवाला दे रहे हैं ये उस वक्त की आयत है जब पैगंबर साहब को मक्का से अलग कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, तो उस वक्त सर्कमस्टांसेस अलग थे, हालात के एतबार से। ये बात कर रहे हैं कि मक्का से निकाल दिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को और तमाम सहाबियों को। इनका कुरान चीख चीख करके कहता है कि ए नबी हिजरत करो तुम यहाँ से मदीना की तरफ, और जो तुम्हारे साथ हिजरत नहीं करेगा वो गुमराह होगा। इनका अल्लाह जो है मजबूर कर रहा है उन सहाबियों को। मजबूर नहीं, जुल्म हो रहा था तब अल्लाह 15 साल इजाजत नहीं, 13 साल इजाजत नहीं थी।
और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको सारे घर छोड़ने सहाबा का को दे हुक्म दी। कुरान दे रहा है। मक्का के काफिरों का हुक्म आपके कुरान में नहीं है, आपके अल्लाह का हुक्म है। वो कह रहा है कि जो हिजरत नहीं करेगा वो गुमराह होगा, उसको हम जो है हिदायत नहीं देंगे। 13 साल में उनको और भी मजबूर जगह किया हिजरत की, आपके कुरान ने, हफ्सा की गिरी, आपके रसूल मदीना अल्लाह की ने और उनको लोगों ने आयतें दी दी। कि घर छोड़ो अपना। आप चिल्लाते हैं कि 13 साल जो है परेशान समीर किया, साहब, उसके बाद हिजरत करनी पड़ी। समझने की तो बात है, हिजरत अपनी कुरान मर्जी की से आयत की पढ़ने से नहीं हो जाएगा और कि- मदीना जाने के बाद ठीक है, आपके ठीक है, रसूलुल्लाह और समीर, सहाबाओं ने समीर मक्का के साहब सुन लो काफिरों तो को लूटा है, बगावत करने कत्ल से किया बागी है, हो जाएगा, उनके ऊपर हमला किया है। अताअत करने से फर्मा बरदार हो जाएगा, बगावत आपके करने से सहाबा बागी, की हदीस और है, बागी कुछ भी आपके कहे उसकी कोई आपके हैसियत अल्लाह नहीं के बागी की कुरान बात में आयते हैं कि हमला करो उनके ऊपर, 13 हम साल तुमको जब माले गनीमत देंगे, तुम में से 10 लोग उनके ठीक 100 है, पे भारी होंगे। समीर ये और आपके हाजिक कुरान खान के आयते साहब हैं। इस मुद्दे पर आपके ये उल्टी चल रहे हैं, ठीक है, इनकी ठीक है। उल्टी हो चुकी हाजिक गिनती। खान साहब, अगर मैं ये आपकी वापसी बात कर ली का इन्होंने भी- वापसी तो इनकी उल्टी गिनती होती। बात ये है कि 13 साल तक मुसलसल ठीक है। साहबा की पिटाई होती ठीक रही है। और साहबा को इजाजत, अल्लाह ने 13 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म की इंतहा देख ली, तब हुक्म दिया। हजरत अबू बकर ने क्या कि अल्लाह के रसूल मैं इज्जत कर लूं, फरमाया ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ चलोगे। ठीक है, अभी हाजिक अल्लाह का साहब, हुक्म नहीं समीर आया साहब, तो आपने अल्लाह अपनी अपनी राय रखी, आपने इस मुद्दे पर अपने अपनी ओपिनियन रखी, अपने अपने रेफरेंसेस का हवाला दिया है और हमारे जो देखने वाले हैं हमारे शो मैडम को, एक बात कह के जी बोलिए बोलिए अपनी बात कंप्लीट मिनट। कीजिए। हाँ, मैं नहीं मैं तो चाहूंगी ये कि बात- कहूँगा कि इन दुनिया के लोगों के लिए पैगाम है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। इंसानियत के साथ भलाई करनी यानी है, वो- हर मजहब कहता है और हम भी कहते हैं, इस्लाम भी कहता है। ठीक है, और वो लोग जो लोगों को बरगलाते हैं, आतंकी संगठनों में शामिल करते हैं वो कि तुम जालिम है, अपने वो देश के- अपने देश इस्लाम में के हितमे है, ना भाइयों के मुल्क लिए के लड़ो, हितमे है, ना दीन के हितमे है, इस्लाम वो के किसी लिए नहीं लड़ो, यानी इस्लाम के लिए लड़ना, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए लड़ना, इस्लामिक मुल्कों की, इस्लाम को मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क, यानी कि एक मुल्क अगर इस्लामिक का हो गया है तो दूसरे मुल्क को भी लड़ाई करके कब्जा करके इस्लामिक मुल्क बनाना, ऐसी लड़ाई में शरीक होने के लिए अगर कोई संगठन कहता है तो इस्लाम के खिलाफ है। सही समझी मैं हाजिक खान साहब? जी जी मैडम, ठीक है, जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क से अल्लाह कह रहा है वफादारी बिल्कुल करो। नहीं, ये इस्लाम का हुक्म है। ये इस्लाम का हुक्म है। एक ये मिनट, इस्लाम का समीर, हुक्म है और यानी कुरान एक के अंदर इस्लाम का वाज़ेह है। हुक्म ये है कि वो उनके अगर लिए है कोई- जो वहाँ के अगर हुक्मरान, कोई- वो अगर उनके लिए। कोई मैडम इस्लाम इनकी के गलत बात, प्रचार- एक वो मिनट, वहाँ उनकी फौज को है, वो हमारे लिए नहीं है। आईसी वो उनकी फौज को है, वो अगर कोई उनकी फौज संगठन बढ़ा खड़ा रही है होता है तो वो वो कहता है उनकी कि मैं जिम्मेदारी एक हमारे मुल्क के में बाद हमें- दूसरे तो मुल्क हमारी को भी वफादारी कब्जा है। करके जोर ISIS जबरदस्ती इसी से इस्लामिक आइडियोलॉजी मुल्क को बना फॉलो दूंगा, कर रहा है। तो उस ISIS लड़ाई उसी में कुरान को फॉलो कर करके ये सारे काम कर रहा है। एक सेकंड मैं आप इजी कब तक इनकार करेंगे? समीर मैं आसान करती हूँ। एक आदमी अगर एक कोई संगठन खड़ा हो जाता है या कोई भी शख्स खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि मैं आज एक मुस्लिम मुल्क है, मैं बगल वाला मुस्लिम मुल्क, पड़ोसी मुल्क को भी मैं छीन लूंगा, हत्या लूंगा, उस पर हमला कर दूंगा, उस पर कब्जा कर लूंगा और उसे भी मुस्लिम मुल्क बना दूंगा, वहां पर भी शरिया कानून लागू करवा दूंगा, उसे भी मुस्लिम मुल्क बना दूंगा, तो इसीलिए मेरी लड़ाई में शामिल हो जाओ। तो क्या इसके लिए इस्लाम कहता है कि हाँ ये फर्ज है, ऐसी लड़ाई में जुड़ना चाहिए? मैडम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ये अलैहि वसल्लम नबी की जब कूड़ा सुन्नत डाला है, ये था, सहाबाओं का अमल है। उन लोगों ने आसपास के मुल्कों पर हमला किया, उन्होंने रोमन एम्पायर पर उनको हमला हक किया, है, उन्होंने उनको पर्शियन हक एम्पायर है, पर हमला उनको किया, हक उन्होंने है। कैसर और किसरा पर हमला किया। अरे भाई उनको उन्होंने- हक है, फंडामेंटल उन्होंने राइट हर है मुल्कों उनके, पर हमला वो कर अपने करके मुल्क को उसको- बढ़ाएंगे, उसको जो है क्यों नहीं अरे है? अपने मुस्लिम मुल्क को हमारा बढ़ाएंगे। मुल्क है, नहीं, हम नहीं, अपने मुल्क को बढ़ा, भारत अगर कहीं आगे बढ़ेगा बांग्लादेश को लाएगा, अब हमारे लोग कह रहे हैं कि हम उसको दूसरे मुल्कों में लाएंगे तो हम हाजिक अपना साहब, मुल्क के हाजिक एतबार साहब से मैं क्या कह रही हूँ, हाजिक साहब मैं क्या कह रही हूँ, अगर कोई ये कहता है कि भाई मैं पड़ोस वाला मुल्क जो है, कल को कोई भी मुल्क उठ के कहे कि हम भारत को भी इस्लामिक स्टेट बना देंगे, इस्लामिक मुल्क बना देंगे, मैडम, तो क्या भारत के मुसलमानों को उस लड़ाई में शरीक हो जाना चाहिए? हमें हिंदुस्तान की तरफ, वो फौज उनकी है, उनको हुक्म है कि वो अपना मुल्क बढ़ाएं अपना। हमारी फौज का हमारे लिए हुक्म है कुरान का ये कि हम अपने मुल्क की तरफ से लड़ें, ये हमारे को हुक्म है। ठीक है, ठीक है, यानी कि इस्लाम के नाम पर अगर कोई लड़ने के लिए, शामिल होने के लिए कहता है कि मैं बाकी के मुल्कों को भी इस्लामिक मुल्क बना दूंगा, तो उस लड़ाई में मुसलमानों को शामिल जो होना लोगों की जान ले जरूरी रहे नहीं हैं, है। ये गलत है, ये इस बरगलावे में ना, ये हाजिक खान साहब कह रहे हैं, लेकिन समीर कह रहे हैं कि ऐसा लिखा है इस्लाम में। चलिए, आप दोनों के अपने अपने व्यू पॉइंट्स थे, आपने दोनों ने अपने अपने तर्क दिए, जनता के सामने हमने रखे।